یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ ہیلو جی السلام مفتی علیکم مکرم صاحب وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی الحمدللہ ہلو جی فرمائیے جی مفتی مکرم صاحب، یہ تھوڑا تقلید کے سلسلے سے کچھ بات جاننی تھی۔ جی فرمائیے آپ خیریت سے ہیں نا شیخ؟ الحمدللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جی خیریت سے۔ جی شیخ یہ آمین۔ پوچھ رہا تھا کہ تقلید کیسے کیا جاتا ہے، ایسے کچھ بتائیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے؟ اچھا تو جی شیخ۔ مطلب میں بتلا دوں یا آپ کس نظریے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ میرے کو تو لگتا ہے نا، جیسے میں یہ جانتا ہوں کہ تقلید اصل میں کسی کو کرنے ہی نہیں آتا ہے، کہ کچھ بولتا ہے کہ کچھ بولتا ہے کہ کچھ بولتا ہے، اس طرح سے اچھا جو ہے نا پورا ایک دوسرے پہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے کہ کچھ بول رہا ہے کہ کچھ، اصل ہے کیا تقلید یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جی دیکھیے جی مسئلہ یہ ہوا جی کہ جو صحابہ تھے جی سر۔ تو اس وقت تک تو مسئلہ بالکل واضح تھا، ہاں زیادہ تر مسائل نہیں ہوئے تھے، ہاں اور اس کے بعد جو علماء آئے، یعنی ہاں تابعین اور تبع تابعین کا ہاں جو دور شروع ہوا، ہاں انہی میں بڑے بڑے محدثین اور مجتہدین حضرات تھے ہاں جی۔ تو اب وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ لوگ مجلس ان کی ہوتی تھی، مطلب ان کے شاگرد ہوتے تھے اور وہ خود ہوتے تھے، اساتذہ اور شاگرد ہوتے تھے۔ جی جی۔ تو اب وہ لوگ جو ہے مسائل اخذ کیا کرتے تھے قرآن سے، حدیث وغیرہ سے، اچھا، تو اور کون سی مسائل عکس کیا کرتے تھے؟ بہت سارے مسائل پیش آتے تھے، مثلا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسائل نہیں تھے اچھا تو اچھا، تو وہ بعد صحابہ میں بھی بھی تو مسائل پیش آ وہ رہے تو تھے۔ صحابہ بھی تو کرتے ہوں گے؟ بالکل کرتے تھے، وہ لوگ بھی چلیے، کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، تو وہ بالکل۔ صحابہ سے ہم لوگ اسٹارٹ اس کرتے ہیں نا، جی صحابہ بالکل سے اسٹارٹ صحابہ بھی کرتے ہیں کہ کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اس کے بعد جی محدثین بھی کرتے تھے، محدثین بھی کرتے تھے، اس کے بعد بھی لوگ کرتے ہوں گے، اس کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی لوگ لیکن کرتے ہوں گے؟ لیکن نہیں اچھا، سن آج نہیں لیجئے، کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا نہیں، جیسے کہ کہ دیکھیے جیسے سے اجتہاد، دیکھو جیسے سے کہ یہ آج بھی لوگ اگر اخذ نہیں کرتے ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب نے تو بولا تھا کہ ہم لوگ آج اجتہاد کرتے ہیں۔ نہیں اجتہاد، دیکھیے ان کے بعد ابھی میرے ذہن میں یہ نام نہیں ہے کہ کون تھے سب سے آخری مجتہد تھے، یہ پوری اہل سنت والجماعت یعنی پوری ملت اسلامیہ کا موقف ہے۔ علی بن مدینی یا کیا نام ہے، میں آپ کو دیکھ کے بتلا دوں گا کون تھے، نہیں وہ نہیں، آخری مجتہد تھے۔ جیسے سنیں جیسے وہ جیسے آخری مجتہد تھے، تو اب یعنی کوئی مجتہد نہیں نہ ہے؟ اب مجتہد نہیں ہے، ماشاء اب اللہ، کوئی یعنی مجتہد آپ مجتہد نہیں ہے، تو یہ نہیں، ہم مجتہد نہیں۔ آخری مجتہد کب ہوئے تھے؟ آخری مجتہد اسی وقت ہوئے تھے، کب؟ کئی سو سال سے پہلے ہوئے تھے، مطلب مطلب خیر اسی وقت، القرون کے وقت یا خیر القرون کے بعد؟ وہی تبع تابعین میں۔ خیر القرون میں نا؟ جی اچھا، مطلب اس کے بعد جو ہے کتنا راجو، اس کے بعد جو ہے مطلب اجتہاد ختم ہو گیا، اب اجتہاد نہیں ہوگا؟ وہ اجتہاد نہیں ہوگا۔ تو لیکن اشرف علی تھانوی صاحب تو بولتے ہیں کہ اب ہم لوگ اجتہاد کریں گے اور کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، کیا اور جو ہے کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اسکین دوں گا انشاءاللہ۔ جی اسکین دیجیے آپ جی مجھے۔ میں اچھا دیتا ہوں اسکین۔ اور دوسری جی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فتاوی عالمگیری پڑھیں گے اچھا جی، تو اس میں میں پڑھ چکا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، جیسے کچھ اسکین بھی لوگ ڈال رہے تھے کہ مفتی کا اہل اجتہاد میں سے ہونا ضروری ہے، جی تو کیسے چلے گا؟ دیکھیں، مفتی کا اہل اجتہاد میں سے ہونا ضروری ہے۔ جی آپ اس کا مطلب سمجھیے، کیا؟ اہل اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، ہوں، اہل اجتہاد کا مطلب ہے ہوں۔ کہ قابل ہونا چاہیے، وہ اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ تو فتویٰ دے گا تو کوئی فتویٰ میں اجتہاد کر کے ہی دے گا نا، کہ اندازی اٹھائے گا فتویٰ دے دے گا؟ نہیں دیکھیے، اب اس وقت جو ہے ہوں، جتنی بھی کتابیں ہیں اور مسائل ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، ہوں۔ وہ اس وقت مکمل ہو چکے ہیں، اچھا، جتنے بھی مکمل ہو مسائل چکے ہیں، ہیں، اب تقریباً کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا؟ اب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اچھا، ایروپلین قیامت جب تک آتے رہیں گے۔ ایروپلین جب اڑا تھا، ہاں میں جان چکا ہوں، میں جانتا ایروپلین ہوں۔ جب اڑا تھا جی تو بھائی دیکھیے، ایک آدمی اڑا، نماز پڑھ رہا ہے ایروپلین میں، سپوز کر لیجیے ایروپلین کھڑا ہوا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اچھا اب وہ نماز پڑھنے کے لیے سورج مغرب کا ہے، سورج دیکھا وہ ڈوب گیا۔ اچھا اب ایروپلین اڑا، اچھا اب اڑا تو سورج دکھنے لگا، جی تو نماز وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کیا کرے گا؟ یہ احتیاط کر کے مطلب اب تو احتیاط نہیں ہوگا، ہاں میں کہہ رہا اب ہوں، کیا میں اسی ہوگا بات اس پہ میں؟ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، دیکھیے، اجتہاد کا مطلب
आप थोड़ा सा इसको समझिए। बताइए मेरे बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मसला पेश आ रहा है जी। और वो उलमा के सामने है तो उलमा की जमात बैठेगी और इन लोगों ने जो हमारे अइम्मा हजरात हैं, उलमाए दीन हैं, जो मुज्तहिदीन हजरात थे, उन्होंने कुछ उसूल मुकर्रर कर रखे हैं। क्या 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 वो उसूल क्या है? बहुत सारे उसूल हैं। जैसे उसूल तो बताइए। नहीं, बहुत सारे उसूल हैं। मैं देखिए बता दूं, शेख मोहतरम, अगर कुछ एक दो उसूल नहीं बताइएगा शेख मोहतरम तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लोगों को तो जानना होगा ना कि उसूल है कि नहीं है, कि या उसूल के नाम पर कुछ और है। क्या उसूल होता है? उसूल है मेरे भाई। उसूल क्या? इस्तिहाद करने के उसूल। हाँ हाँ, इस्तिहाद करने के उसूल, माशाल्लाह। तो मुस्तहिद का इस्तिहाद करने का उसूल क्या होता है? अरे मेरे भाई, अगर कोई मसला पेश आ रहा है, ठीक है, मुस्तहिद पर पहले लोग आते हैं। मुस्तहिद को कोई मसला पेश आया, वो उसका उसूल क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। तो मेरी बात समझो आप। मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई मसला पेश आ रहा है और हमारे जो अइम्मा हजरात थे उन्होंने उसूल मुकर्रर कर रखे हैं। अइम्मा हजरात ने क्या उसूल मुकर्रर कर रखे हैं? अंदाजी मतलब कुछ कर दो भाई। बहुत सारे उसूल हैं। जैसे कोई एक उसूल का नाम तो बताइए। एक उसूल तो बताइए। काम नहीं चलेगा ना। अरे कोई एक उसूल तो पेश कीजिए मौलाना। उसूल कहाँ से लेंगे आप? उसूल कहाँ से निकालेंगे आप? उसूल कहाँ से निकालेंगे? वो लिखे हुए हैं किताबों में। क्या लिखा हुआ है? कोई एक उसूल पढ़िए, कुछ तो याद होगा ना आपको क्या उसूल है। देखिए, मैं पढ़ूंगा तो सारे पढ़ूंगा। अच्छा ये बताइए, माखज इस आदमी के 4 हैं कि उससे ज्यादा भी कुछ उसूल है? माखज उसूल दीन है क्या? उसूल दीन तो कुरान हदीस इजमा और कयास है। इजमा और कयास है, बिल्कुल। इससे हट करके भी क्या उसूल दीन होगा इस्तिहाद करने के लिए? देखिए, माखज जो है, अरे माखज कुरान हदीस इजमा और कयास हो गया ना। इजमा कयास है, बिल्कुल। तो इससे हट करके भी क्या मतलब कौन सा उसूल बन गया भाई? इस तरह तो अक़वाले सहाबा, आसारे सहाबा भी हैं। अच्छा, अक़वाले सहाबा और आसारे सहाबा को भी आप देखेंगे। माशाअल्लाह। हाँ, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब आप अक़वाले सहाबा को मतलब 5 उसूल अब हुए, कुरान हदीस इजमा। एक सेकंड। अब उसूल हो गए 5, कुरान हदीस इजमा और क़यास, और 5वां हो गया क्या बताए? जी, उसूल सहाबा। जी, अक़वाले सहाबा। अक़वाले सहाबा, माशाअल्लाह। अब आपने माखज 5 कर दिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि 5 हैं। अभी तो आप बोल दिए अक़वाले सहाबा भी होंगे ना। असल हमारे उसूल 4 हैं। असल 4 हैं, ठीक है। आप 4 ही पे रहते हैं। आसारे सहाबा इन्हीं में दाखिल हैं। माशाअल्लाह। तो उससे वो 4 ही पर बात करते हैं ना हम लोग। यानी अब आपके जो आलमा, हमारे जो आलिम बैठ करके इस्तिहाद करेंगे, वो 4 उसूल लेकर के इस्तिहाद करेंगे। जी, बिल्कुल सही बात। तो मुस्तहिदीन भी तो यही करते थे जी। तो नया वो तो मुस्तहिद हो जा रहे हैं ना, इस्तिहाद कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस्तिहाद कर रहे हैं, तो अब जैसे उलमा बैठे, हम उनके इस्तिहाद को माने, है ना। देखिए, मेरी बात सुनने की कोशिश। प्लेन उड़ा सूरज निकला, उलमा ने इस्तिहाद किया, नमाज होगा, कुछ नहीं किया, नहीं होगा। मेरी बात सुने जी। आप जो है ना, आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। नहीं, गलत फहमी नहीं है, यहाँ पर मिसकंसेप्शन है। नहीं, गलत फहमियां हैं। मैं बताएं ना, बताएं। आपके तमाम सवालात का जवाब। अच्छा, आप मुकल्लिद किसके हैं? हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। चलिए, आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है, इस बात पर आप मुत्तफिक है ना? और तो किसी के मुकल्लिद नहीं है ना? जी, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है। और किसी के नहीं है ना? नहीं, किसी के नहीं है। चलिए ठीक है, एक मसला को इमाम अबू हनीफा से पेश करें जिसको आपने तकलीद का नाम दिया हो। बहुत सारे मसाइल हैं। वो एक मसले पेश कर दे कि हमने मतलब क्या मसला पेश करूं, बतलाइए। जिसमें आप बोलते हैं कि हम इसमें तकलीद करते हैं। भाई तकरीबन सारे ही मसाइल हैं। कोई एक मसाइल तो मुफ्ती साहब आपको मालूम होगा ना कि हम इसमें तकलीद करते हैं। जी, सुन लीजिए। हाँ, बता दे। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। और नमाज सुनन मुस्तहब्बात और सारे जितने भी अरकान हो सकते हैं उसके साथ हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। ये मुकम्मल जो नमाज का जो तरीका है मुकम्मल। और कोई मसला पेश आ जाए उसके अंदर, जैसे कोई मसला कौन सा पेश आया अभी बताइए तो। कोई मसला पेश तो आया होगा ना? हाँ, मैं बतला रहा हूँ ना। बताइए। हाँ, मैं बतला रहा हूँ। तो हम जो नमाज पढ़ते हैं, सारी की सारी जो नमाजें पढ़ते हैं, जी, तो ये पूरी की पूरी नमाज में हम तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकलीद जो है मनसूस में होती है कि गैर मनसूस में होती है? तकलीद, हाँ भाई तकलीद मतलब आप नमाज को इस्तिहादी मसाइल मानते हैं
कि कयास किया हुआ मसला को है। इज्तिहादी मसाइल नहीं मानते। देखिए तो आप तो आपने बोल रहे मेरी हैं कि बात आप नहीं नमाज में समझी। तकलीद करते हैं। आप गलत और समझ रहे हैं, तकलीद मेरी सिर्फ बात और सिर्फ मसले इज्तिहादिया में की जाती है ना। मैं आपने ये कहा कि आप कोई ऐसा मसला बतला दीजिए। हाँ ठीक है? बतलाइए। ठीक है, मेरी बात सुने। जी हाँ। कुरान पाक में नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी तरतीब व तफसील मौजूद नहीं है। तो हदीस में है कुरान ना। पाक में हाँ सुन, अच्छा बतला दीजिए, आप बतला दीजिए। तो चलिए, हदीस में भी कुरान पढ़ने का तरीका नहीं है। हाँ, हदीस में अच्छा भी चलो, नहीं है, हदीस कुरान में ना, भी नहीं है। आपने कहा हदीस में है, आप बतला तो दीजिए। भाईजान पहले सुन तो लें भाईजान। हाँ, मुफ्ती साहब देखिए, मुफ्ती साहब जी। ऐसे कीजिए। आपने बोला कि कुरान में तफसील से नहीं है, मैंने पूछा हदीस में है या नहीं है। अच्छा, आपने पूछा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप बोले कि मैं- हदीस में नहीं है। हाँ, अच्छा जी, मैं बतला रहा हूँ, जी बतला रहा हूँ। बतलाएं बतलाएं। आप भी तफसील का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका तफसील मतलब बितरतीब व तफसील। यानी एकदम तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम तक। नहीं, ये मतलब नहीं है। बताएं, बितफसील से बताएं। मुराद है शराइत, अरकान, वाजिबात, सुनन मुअक्कदा, मुस्तहब्बात, अच्छा मुबाहात, अच्छा 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 मकरूहात अच्छा और अच्छा मुफसिदात। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बोले बोले बोले। समझ में आ गई? हाँ, बोले, अरकान, बोले, बोले। वाजिबात, हम्म। सुनन मुअक्कदा, मुस्तहब्बात, मुबाहात, हाँ। मकरूहात और मुफसिदात। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है इसका ठीक भी है। तरीका हदीस में मौजूद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका तरीका हदीस में मौजूद नहीं है। इसको आपको किसने बताया? किसने बताया? हम्म। आप दिखा दीजिए। अरे ये तरीका बताया किसने? मकरूहात का, फर्जियत का या सुन्नत का? ये बतलाया है हमारे इम्मा ने। आपके अइम्मा, उनका नाम? उन्होंने इज्तिहाद किया है उनका कुरान और नाम हदीस उनका से। नाम उनका नाम? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम अलैह। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कहाँ पढ़ी ये बात आपने? कोई एक मसला बताइए और बताइए कि मैंने यहाँ पर पढ़ी है ये बात। अरे यार, अब आप सवाल पर सवाल करे जा रहे हैं। नहीं सेखे मैंने मोहतरम, ये सेखे कहा- मोहतरम, सेखे मोहतरम, देखिए देखिए समझिएगा बात को। मैंने बोल ये देने कहा- से प्यारे से बोल देने से नहीं ना होगा, क्योंकि जी। आपके यहाँ अभी नमाज के फर्जियत पर कई अकवाल है। कोई बोलता है 14 है, कोई बोलता है 7 है, कोई बोलता है 9 है। 9 है नमाज की फर्जियत कि नमाज में क्या क्या चीज फर्ज है। अच्छा। कोई बोलता है 14 है, कोई बोलता है 9 है, कोई बोलता है मतलब गुस्ल में जो है ना आपके यहाँ जो है ना बहुत सारे मतलब कि ये है। कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है। मैं आपको सारा मसला भी लगा दूंगा तरतीब के साथ में। चलिए आप एक बार सुन लें। तो फिर ये हाँ, कैसी तकलीद है जो कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है, और आप बोल रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा ने बता दिया। अब फिर आप मतलब आपके कई अकाबिरीन जो है वो कोई बोलते 14 फर्ज है, कोई बोलता है 9 फर्ज। इस तरह बहुत सारे अकवाल है, कई अकवाल है जो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी पेश कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। समझे? तो इसलिए मैं वही सोच रहा था सेखे मोहतरम। अकवाल तो हो सकता है ना, इख्तिलाफ तो हो सकता है ना भाई। तो सेखे मोहतरम एक बात बताइए सेखे मोहतरम, इख्तिलाफ तो हो सकता है ना। यानी इमाम अबू हनीफा की बात पर इख्तिलाफ है। अरे मेरी बात सुन लीजिए मौलाना। जी जी जी। आप नहीं, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अच्छा, आम आदमी हो। चलिए, बहरहाल आप जो है ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने 14 बताए, किसी ने 12 बताए, किसी ने कुछ बताए, है ना। तो यानी इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ तो हो सकता है। तो इख्तिलाफ के यानी एक मसला, एक सेकंड, एक मसला कुरान हदीस में नहीं है। अब उसमें इमाम अबू हनीफा ने इस्तिहाद किया। अब उसके बाद उसमें इख्तिलाफ भी कर लिया आप लोगों ने, यानी ये उनकी इस्तिहाद को में इख्तिलाफ कर लेना है। हाँ, अब बिल्कुल सही जगह आ गए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इख्तिलाफ किया। कौन किया इख्तिलाफ? इस्तिहाद किया इमाम अबू हनीफा इस्तिहाद किया, ठीक है, इस्तिहाद किया। अब उसके बाद देखिए, मुजतहिद के लिए जो अजर होगा ना वो ये होगा कि अगर देखिए मुजतहिद जब मुजतहिद जब इस्तिहाद करता है तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हाँ ठीक है। इसलिए कि मुजतहिद का काम है इस्तिहाद करना, कोशिश करना। बाकी हो सकता है वो गलत हो, मतलब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो पसंदीदा हो, लेकिन चूंकि ना तो हदीस में ना कुरान में है और अमल करना भी है। और तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मुजतहिद जो इस्तिहाद करता है वो सही ही होगा। मतलब तो इमाम अबू हनीफा की तरह, मतलब जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसमें डाउट है आपको? देखिए, हम नमाज में कोई डाउट नहीं है। तो भैया आप तो बोल रहे गलत भी हो सकता है। तो इमाम अबू हनीफा के इत्तिहाद में आपको डाउट है? मसाइल, नमाज के भी तो मसाइल हैं। हाँ, वही जो मसाइल है उसमें आपको डाउट है थोड़ा मोड़ा, जिसमें इस्तिहाद हुआ है तो उसमें डाउट आपको है ना, क्योंकि इमाम अबू हनीफा गलती हो सकती है। हमें डाउट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है हमारे के हो सकता है सही हो, लेकिन चूंकि हम तकलीद करते हैं इस वजह से हम उसी बात पर अमल करेंगे, किसी और बात पर अमल नहीं। मतलब एक मसला जो आपको गलत दिख रहा है आप उस पर ही अमल करेंगे? गलत कहाँ दिख रहा है? गलत दिखा दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप तो बोले ना कि नहीं तो सही, अच्छा सही हो, मतलब डाउटफुल में आप हैं। चलिए माशाल्लाह, आप डाउटफुल में है कि आप जिस मसले पे अमल कर रहे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डाउट है आपको।
देखिए मेरी बात सुने, मौलाना पूरी देवबंदियत खत्म हो जाएगी मौलाना? नहीं खत्म नहीं होगी, कुछ भी कभी भी नहीं होगी। कैसे नहीं खत्म होगी? खत्म नहीं होगी, खत्म अगर होगी तो गैर मुकल्लिदियत होगी। देखिए सुनिए, देखिए इलियास फैजल देवबंदी के नजदीक नमाज के शरायत व फराइज के तादाद 14 है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, बात समझ में आ रही है? जबकि आले देवबंद की किताब एक है नमाज मुतरजिम में ये तादाद 13 है, और अब्दुल मतलब 14 है फिर 13 है। समझे बात? कौन कह रहा है ये आपके एक किताब है नमाज मुतरजिम, सफा इसमें सफा नंबर 24 में। तो आपकी अकाबरी किताब है, मैं स्कैन लगा दूंगा। इलियास फैसल देवबंदी नमाज पैगंबर उसमें लिखा हुआ तादाद 14 है। अच्छा। यानी कि पूरा का पूरा डॉटफुल है आप लोग कि क्या करना है और कैसे नहीं करना है। मोहतरम मतलब इतना डॉट रख करके। अच्छा सुने अब्दुल शकूर लखनवी जो है उनके नजदीक वजू में सुन्नत मौक़दा 15 है। समझ आ रही है? अब्दुल जबकि इल्मुल फिका में लिखा हुआ है 17 है। अच्छा, कैसे चलेगा सके मोहतरम? यानी एक तो आप लोग कुरान और हदीस में नहीं पाए उस मसले को, उसके बाद आए इमाम की तरफ, और इमाम की तरफ आए फिर वहां पर गड़बड़ कि हम माने सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। हाँ, तो नमाजी कैसी पढ़ रहे हैं हम लोग? में भी है क्या ये बात? तो हदीस शरीफ में भी अगर कोई मुजतहिद इज्तिहाद करता है भाई मेरे तो अब एक इमाम अबू अजर में सुने ना मुस्तहिद नहीं ना, तो मुस्तहिद की बात का अजर को आप अपने में क्यों लपेट रहे हैं? हम अपने में क्यों लपेटेंगे? क्यों? तो आप जो अमल कर रहे हैं उसका अगर आप गलत अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा 2000। क्या गलत? देखिए इंसान का काम कोशिश करना है। तो कोशिश कहाँ कर रहे हैं आप तो बोल रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा की बात को मान के छोड़ देंगे। अब हम कोशिश नहीं करेंगे। यही तो हम बोल रहे हैं कि आप कोशिश करो। एक मिनट चलिए अच्छा चलिए। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ ये बात। हाँ। आपने ये कहा कि भाई आप लोग कुरान और हदीस में जो बात है उस पर नहीं कर रहे हैं। मैं तो देखिए जो भी है मुफ्ती साहब, जितनी बातें मैंने अभी आपसे की मुफ्ती साहब, आप कहीं पर भी गड़बड़ दिख रहे हैं कि आखिर मसला क्या है? हमारे साथ जो मसला है भैया हम तो गैर मुकल्लिद है आपके हिसाब से ना, प्यारे से हम तो गैर मुकल्लिद। हम तो जाकर के अपने 10 आलिम से पूछेंगे कि मौलाना बताइए। 10 आलिम से पूछेंगे अपना, 15 आलिम से पूछेंगे, 50 आलिम से पूछेंगे कि मौलाना बताइए मसला क्या है। 50 आलिम से पूछेंगे मतलब वो लोग इज्तिहाद करेंगे? नहीं, जो मसला इज्तिहाद का होगा तो आलिम इज्तिहाद करेंगे। अच्छा, सिंपल सी बात है। तो कौन इज्तिहाद करेगा? मतलब इसमें इज्तिहाद करने की सलाहियत आलिम नहीं इज्तिहाद करने यार है भैया। आपके देखिए आपके घर में भी तो इज्तिहाद हर वक्त होते रहता है। अच्छा, तो आप बोलते हैं कि हमारे आलिम सब बैठ जाएंगे और इज्तिहाद करेंगे, उसके बाद उस इज्तिहाद में भी डाउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों के यहाँ भी मुस्तहिद हैं? भैया मुस्तहिद तो भी हर जमाने में और हमेशा है भैया। जरूरत तो क्या कहते हैं आपके अनवर शाह काश्मीरी कि बहुत से मसले ऐसे हैं जिनका हल मौजूदा फिका हनफी में नहीं मिलता है। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात कि बहुत से मसले ऐसे हैं जिनका हल जो है वो फिका हनफी के जखीरे में नहीं मिलता है। अच्छा, कितना अच्छी बात बोलते हैं आपके जाकर के अशरफ अली थानवी के हम लोग इस्तिहाद करेंगे। अच्छा, आपके सरफराज सफदर कहते हैं कहीं कहीं मेरे अपने इस्तेंबातात और इस्तिहाद भी होंगे। अच्छा, तो फिर आप एक बार आप खुद इस्तिहाद करते हैं और हम और अहले हदीस को बोलते हैं कि इस्तिहाद मत करो, और आप खुद इमाम अबू हनीफा की बात को डॉटफुल मानते हैं और फिर हमको बोलते हैं कि तुम इमाम अबू हनीफा पर डॉट करते हो। कैसे चलेगा? मेरी बात सुन लीजिए जी सर। हम लोग जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है, ठीक है, ये जो मुस्तहिदीन हजरात है, हम मसलन चार फिक़े हो गए, चार अइम्मा हो गए। नहीं चार अइम्मा तो उधर हो गए ना, इधर तो आप इस्तिहाद कर रहे हैं ना सबको ही। अब फिर आप खुद उसूल बना ले रहे हैं, खुद 4 उसूल से फिर इस्तिहाद भी कर ले रहे हैं। उसूल तो भैया कुरान हदीस इज्मा क्या। इस वक्त किसी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इज्तिहाद कर सके। कौन से सलाहियत नहीं है? अभी तो आप बोल रहे हैं कि हेलो मुफ्ती मुकर्रम साहब, हेलो जी।